Okay, hi dear students. I'm back again for the next topic of economics, and the name of the topic is money. नाम सुनते ही we feel better. Money. नाम सुनते ही we feel better. Money. It is something which makes us happy. And not just, it's a human race psychology. Money, ये word सुनते ही पैसा. Wow, such a wonderful thing. Forget about the rest of the world. Forget about the rest of the technical part into it. पैसा नाम सुना, wonderful. But end of the day, dear students, what is important is to understand that money is something which has got technical analysis into it. Money is something which cannot be bought. You cannot buy money. Understand everybody, you cannot buy money. ऐसा नहीं है कि I paid you and you give me money, लेकिन उसको पे करने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए. तो पैसा हम खरीद नहीं सकते. कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए और पैसे को हम खड़ा कर सकते हैं. It's called as being wise enough with regards to money. Dear students, money is something which we all are attached to, and we Indians are attached to money in the most emotional sense. Indians are attached to money in the most emotional sense. What do I mean by this? एक सिंपल एग्जाम्पल, परसों 8 नवंबर 2020 को डीमोनेटाइजेशन, प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी योजना जाहिर की थी, उसके लिए हो गए एग्जैक्टली 4 years. 16 में क्या, 17, 18, 19 and 20. 4 साल नोटबंदी. जब मोमेंट नोटबंदी हैपेंड, वी मूव्ड ऑन अ बिट टुवर्ड्स पेटीएम, फोन पे, जी पे, ऑल सच सॉर्ट्स ऑफ ऑनलाइन वर्चुअल पेमेंट फैसिलिटीज. लेकिन फिर भी there is something which is attached. एक बार कैश हाथ में आती है ना, we get attached to it because we are Indians. हमने बचपन से सिर्फ पैसा, money in cash, in paper currency के बारे में सुना है, and we get attached to it. कार्ड मनी, वर्चुअल मनी में अगर मुझे आपको 10,000 रुपए देने हैं and I am paying you through cash, it is going to be more a bit of skeptical thing for me. लेकिन यही पैसा अगर मैं आपको चेक के रूप में देता हूँ, I am okay with it. चेक दिया मैंने, कैश नहीं गई मेरे हाथ से. That's the difference between attach, or that's an emotional value which one attaches to money. We Indians specifically do. इसके साथ एक तो है जरूर कि ये पार्ट, ये टॉपिक is going to deal with what money was initially with at the inception of mankind, right from 5th, 10th, 11th, 12th century when nations were ruled by the kings and the queens. That was when the kingdom period was there. To the introductions of better forms of money, to the introduction of RBI, और RBI ने हमारे लिए पैसों के बारे में क्या किया, to from RBI to what you can say is the check form of currencies, introduction of banking system to India, and from there to today, to internet banking in 2001, 2002 से लेके to plastic money in between, and now to virtual form of money through mobile apps and mobile banking. So these are the various forms of banking modes, these are the various forms of money that we are using, but at the end of the day, money is what money does. पैसे का काम सिर्फ पैसा करता है बच्चों, भाई और बहनों. पैसे का काम सिर्फ पैसा करेगा, आप और मैं नहीं कर सकते. आप कहोगे कि सर मैंने आपसे आपने मुझे सर एक 1 acre ऑफ लैंड बेचे, चलो आप मुझे गोल्ड दो. नहीं, आपको पैसा ही चाहिए. So money is what money does because there is no substitute for money. लेकिन पहले के ज़माने में there was something called as barter exchanges which were using money, which were irreplaceable with regards to money. पैसा तो बहुत बाद में आया, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, करेंसी, ये बहुत ही बाद में आया था. लेकिन पहले it was only and only with regards to barter system of transactions. So let's move on towards the next parts into it. जैसे हमने देखा money is what money does, लेकिन पहले क्या था, कुछ हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, कुछ ब्यूटीफुल वल्नरेबिलिटीज के बारे में देखेंगे, उसके कुछ अच्छे पहलू देखेंगे, कुछ नेगेटिव पहलू भी देखेंगे, एंड देन विल सी व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ मनी. सो लेट्स गो इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द बार्टर सिस्टम ऑफ मनी. सबसे पहले है इट रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. बार्टर सिस्टम कहती है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. Agreed. I am a potter, you are a farmer, we can exchange you can exchange your farming produce to me, I can exchange my pots to you. That's exchange, that's barter. Agreed. लेकिन इसमें तकलीफें बहुत है, इसमें प्रॉब्लम्स बहुत है. और प्रॉब्लम्स कौन से है इसमें? सबसे पहला प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. मतलब क्या? We'll read it. Lack of double coincidence of bonds was one of the major limitations of barter system.
For instance, person A has cloth and he wants rice in exchange, and person B has rice but does not want cloth in exchange. In this case, exchange is not possible because एक आदमी राइस बेच रहा है, एक आदमी कपड़ा बेच रहा है. डबल कोइंसिडेंस. यार मुझे नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मुझे खरीदना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं उसे अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे रिटर्न में मनी सोर्स ही नहीं है, मुझे बार्टर एक्सचेंज है, तो मुझे उसके भी कुछ चीजें लेनी ही पड़ेगी. That's double coincidencing of words. Did you get this thing, dear students? Further, lack of common measure of value. While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilograms of rice. कॉमन मेजर ही नहीं है ना. ये फोन की कीमत, लेट्स से दिस इज अ गूगल फोन, इट्स अ गूगल पिक्सल फोन, इसकी कीमत मार्केट में 60,000 है. वाई 60,000? कुछ तो उसके लिए एक इंटेलिजेंस अटैच किया है, उसके लिए कुछ तो ऐसे टेक्नोलॉजी अटैच की है, उसके लिए गूगल ने अपना खुद का ब्रांड वैल्यू अटैच की है, इसीलिए उसकी कीमत 60,000 है कि नहीं है. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए. अगर हम लोग इसी के कंपैरिजन में लेट्स से फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये बॉटल ले सकते हैं. ये बॉटल है डिकैथलॉन की बॉटल जिसकी कीमत मार्केट में 200 रुपए है. डिस्काउंट पकड़ के लेट्स से 150 रुपीज में 100 रुपीज है. आई एम सॉरी. नाउ इफ दिस बॉटल कॉस्ट ₹100, इसका मतलब है इसके लिए कुछ तो वैल्यू है ना, इसकी कुछ वैल्यू है. देयर इज सम मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड टू इट. इसी की बदौलत इसकी कीमत 100 रुपीज है. And this is what is called as the lack of common measure of value. पैसा नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आने ही वाला है. This problem would be there. Lack of common measure of value. Lack of common measure of value. Clear everybody? While exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilograms of rice. तो milk और rice हम कैसे, मतलब how will we equivalent these two things? Equivalence ही नहीं है दोनों पे. प्रॉब्लम है. फर्दर, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. यार आई एम अ फार्मर, यू आर अ पॉटर, आपने मेरे से 10 किलो राइस लिया है, तो मैं इसको इक्विवेलेंट में पॉट्स कैसे लूँ 10 किलोग्राम में? तो ऑब्वियसली मुझे मेजर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम आने ही वाला है. लेकिन दूसरा प्रॉब्लम, यार 10 पॉट्स लेके मैं रखूंगा कहाँ? तो स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोरेज का प्रॉब्लम होने वाला है. तो बार्टर में ये तीसरा प्रॉब्लम आ रहा था. चौथा, indivisibility of certain goods. In barter system it was inconvenient to divide. In barter system it was inconvenient to divide animals house into small parts, so it was difficult to fix proportion of one commodity. Got it? It's simple as that. Individual A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. Individual B has a goat and he wants only half a sack of wheat. So how will this be measured? And this was a problem called as indivisibility of certain goods. Indivisibility of certain goods. इसका मतलब यही है माय डियर फ्रेंड्स, दैट गुड्स को एग्जैक्ट एक्सचेंज में वैल्यू क्या रहेगी. क्या मैं प्रोड्यूस करता हूँ लेट्स से गूगल फोन, आप प्रोड्यूस करते हो वीवो फोन, मैं आपको फोन बेच रहा हूँ गूगल का जिसकी कीमत 60,000 है, आप भी कह रहे हो मेरे पास जो प्रोडक्शन है वही मैं बेचूंगा, बिकॉज वी आर इनटू बार्टर, देयर इज नोवेयर मनी अटैच्ड टू इट. हाउ इज इट पॉसिबल? 60,000 का फोन, 20,000 का फोन, इसकी कुछ वैल्यू है, रिलेशनशिप में नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजिबिलिटी अगेन. Problem of making deferred payment. Deferred payment means payment to be made in future. Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Example, it was difficult to repay the perishable goods in the same condition in future. मतलब यही है कि मतलब क्या है कि अगर मैं आपको गुड्स बेचना चाहता हूँ तो ठीक है चलो, लेकिन मैं आपको पेरिशेबल गुड्स बेच रहा हूँ. इफ आई एम अ फार्मर एंड आई एम फार्मिंग और आई एम प्रोड्यूसिंग वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स तो पेरिशेबल है, 2-3 दिन में खराब होने वाले हैं. आपको मैं कैसे बेचता रहूंगा वेजिटेबल्स? हाउ विल आई? और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, चलो मैंने आपने मुझे गुड्स बेचे, मैंने आपको वेजिटेबल्स बेचे, अब 1 महीने के लिए वही यूज करो, आई डोंट हैव एनीथिंग, मैंने आपको बेच दिया है, आई हैव गिवन यू दैट इन बार्टर. Can a tomato which is bought on the first of the month be useful till the last day of the month? It's not possible, and that's where the problem of money started growing. इसीलिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने मनी की कुछ कंसेप्ट्स लाई, कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू लगाई, टोकन वैल्यू अटैच की, एक स्टैंडर्डाइज पेमेंट ऑफ सिस्टम लगाई उन्होंने. That's it everybody. We continue with the part of definitions of money in further parts. Coming back. So students, as we have seen the difficulties in barter system or the barter exchange of transactions,
वन थिंग इज वेरी सर्टन, एक बात तो बिल्कुल तय है कि बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टीज बहुत ही थी. A goldsmith had to purchase pots. A potter would always be in benefit because he would be getting gold from the goldsmith, and a goldsmith would be getting only pots from the potter. दूसरा बात यह है इसमें कि there is no common measure of value, मतलब pot की या gold की दोनों की वैल्यू ही नहीं है. There is no equilibrium. I cannot have two items which are of same nature, same valuations, because there is going to be difference. लेट्स से अगर मैं लेनोवो का लैपटॉप पकड़ूं और मैं आई हैव अ लैपटॉप विच इज कॉल्ड एज HP लैपटॉप, भले दोनों लैपटॉप ही है, भले दोनों मुझे सेम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, सेम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बोथ द लैपटॉप्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट. दोनों की प्राइस अलग है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस अलग है, दोनों की प्राइस अलग है. सो आई कैनॉट इक्विवेलेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूज. इस सबके प्रॉब्लम्स आते आते द मनी इटसेल्फ बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आज जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैंने पहले भी, मोबाइल वुड कॉस्ट फॉर 60,000, बट इफ आई टेक अ वीवो फोन दैट वुड कॉस्ट फॉर 25,000. So there is a huge difference over there, and this huge difference plays a pivotal and an important role in understanding what exactly comes with the help of money. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें यह भी थी कि रिगार्डिंग मनी दैट डेफर्ड पेमेंट्स वाज नॉट पॉसिबल. इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने लोन लिया है और मैं लोन की रकम जो EMI रिपेमेंट है वो एवरी मंथ इफ आई स्टार्ट पेइंग EMIs, so how am I going to calculate that EMI in the basis of if there is no money? So money had to be there, money has to be there. If there is no money, there is no possibility of good amount of transactions to be settled, and that's why money is considered to be a great leveler, dear students. That's why money is considered to be a great leveler. Clear everybody? And that is what is important to understand. Money is considered to be a great leveler. So I am writing it over here. और इसकी बदौलत हुआ क्या? इसकी बदौलत हुआ ऐसा that the concept of money was being introduced at a very prominent level. उसके पहले हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में डेफिनेशंस क्या है. ठीक है, डेफिनेशंस ऑफ मनी. सबसे पहला डेफिनेशन मनी का. So what exactly has been defined as money? Professor Crowther defines money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and a store of value. Money is anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and store of value. मतलब मेरे प्रोडक्ट को, मेरा एक्स प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कीमत लेट्स से ₹100 है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू. मतलब उसकी कुछ वैल्यू है. और स्टोर ऑफ वैल्यू, एवरी प्रोडक्ट विल हैव सम वैल्यूएशन विद रिगार्ड्स टू इट्स स्टोर. एवरी प्रोडक्ट विल हैव सम वैल्यूएशन. हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी खुद की एक वैल्यूएशन है विच इज इन स्टोर. A reason why Lenovo laptop would cost 50,000 and HP laptop would cost 40,000, or a simpler one, a Micromax laptop would cost rupees 30,000, because every product has its own store of value, and the store of value itself is the basic feature of money. प्रोफेसर वॉकर जिन्होंने दूसरा डेफिनेशन दिया है मनी का, उन्होंने कहा है कि मनी इज व्हाट मनी डज. मतलब पैसे का काम सिर्फ पैसा ही करता है. देयर इज नथिंग एल्स व्हिच कैन बी हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ मनी. नाउ वी विल चेक इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशंस ऑफ मनी, जिसको हम लोग कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ मनी. नाउ प्लीज नोट एवरीबडी, एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो दिस वेरी वेल, बट आप लोगों की बेटर नॉलेज के लिए आई वुड से ऐसा नहीं था कि पहले से ही हमारे देश में जो करेंसी थी उसको नाम दिया गया था इन टर्म्स ऑफ रुपी. It was a much later introduction. The value, a symbol for our currency rupee, was given as rupee much later in 2011. And at this platform, this is very important to understand, dear students. तो पहले क्या था एवोल्यूशन ऑफ मनी में, जहां पे इन्होंने पूरा का पूरा दिया है. एनिमल मनी दिया है, कमोडिटी मनी दिया है, मेटालिक मनी है, मेटालिक कॉइन्स है, पेपर मनी. व्हाट इज दिस? दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज द हिस्ट्री एंड द एवोल्यूशंस ऑफ मनी. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मनी? एनिमल मनी.
In the proto-historic period, animal money was used as a means of exchange. Example, cow, sheep, goat. However, due to their indivisible nature, commodity money came into existence. मतलब animals were considered to be a means of valuable exchange. अगर आज भी हम पंजाब में जाते हैं, स्पेसिफिकली इन पंजाब कुरुक्षेत्र, इस बड़े बड़े एरियाज में विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, वहां पे दर साल there is a show which is called as a livestock valuation show, जिसको livestock का market बोलते हैं, and then there is exchanging of animals which takes place. Now it is being taken in terms of money, लेकिन till the time money was being introduced, it was taken in terms of exchange only. People exchange their ox, their bulls worth rupees crores विद रिगार्ड्स टू एक्सचेंज में किसी से घोड़े लेते हैं, किसी से शीप्स लेते हैं, किसी से और कुछ एनिमल लेते हैं. द बेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ एनिमल्स टू एनिमल्स वाज अ बुल, एन ऑक्स, और अ ह्यूज, व्हाट यू कैन से, अ ह्यूज काउ और अ बफेलो यूज्ड टू बी एक्सचेंज्ड विद द पीपल सेलिंग हॉर्सेस. तो उनसे 2 हॉर्सेस लो, इनके बुल की कीमत लगाओ, एंड दैट वुड बी द एक्सचेंज एंड द मीडियम ऑफ वैल्यू. But this changed because there was introduction of commodity money, because animals को how can one bull be equal to 2 horses और how can 2 horses be equal to 1 bull, इसका कुछ रेशियो ही नहीं है. इसीलिए commodity money had to be introduced, which meant every commodity which was in circulation had some value in storage. It had some value in storage and it was used as a medium of exchange. लेकिन इसमें भी एक थी, the 2 types of commodity money were talked about. One was called as common commodities or which were called as normal commodities, और दूसरे थे what was called as the rare articles. दूसरे थे what was called as the rare articles. जाहिर सी बात है, I'm exchanging this diary with the diary, that's a normal commodity. I'm exchanging, let's say for example, this box with another box, that's called as a normal commodity. लेकिन मैं, if I'm sure that if I'm selling Gandhi Ji's spectacles, then obviously that is going to be a rare article. और rare article की अपनी खुद की एक अलग ही intrinsic value होती है. Intrinsic value मतलब that cannot be measured as such. उसकी कुछ पैसों में कीमत नहीं, it's such invaluable. मतलब जो पैसों से भी ऊपर है. Something gift given to you, some precious gift given to you, let's say by the great Narendra Modi, that would be called as a rare article. गांधी जी ने यूज की गई चरखा आपको गिफ्ट मिलती है, क्या उसकी कीमत लगा सकते हैं हम लोग? बिल्कुल भी नहीं. उसको कहते हैं रेयर आर्टिकल्स, प्रेस्टीज गुड जिसको कहते हैं, मोर सो. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे. कैसे नापे हम लोग कि ये कॉमन है, ये रेयर है, ये कॉमन है, ये अनकॉमन है? दिस वाज व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. तो इसको शिफ्ट किया गया विद व्हाट वाज कॉल्ड एज द मेटालिक मनी. मेटालिक मनी मतलब मेटल कॉइन्स यूज्ड टू बी सर्कुलेटेड, लेकिन इसमें ये था मेटालिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल. However, scarcity of precious metals and lack of uniformity in metallic pieces gave rise to the use of metallic coins. मतलब तरह तरह के coins बनाए जाते थे जो metal के थे. एल्यूमिनियम का है तो उसको कम वैल्यू, सिल्वर है तो थोड़ी ज्यादा वैल्यू, गोल्ड है तो और थोड़ी ज्यादा वैल्यू, प्लैटिनम हायर वैल्यू. बेटर द वर्क, बेस्ट काम, प्लैटिनम दे दो. सिंपल नॉर्मल काम है, एल्यूमिनियम दे दो. लेकिन फिर भी उसमें देयर वाज नो कॉमनिटी, उसमें देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी अगेन. और इसको छोड़ के मेटालिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. इन द एंशिएंट टाइम्स रूलर्स ऑफ वेरियस किंगडम्स used to use small pieces of metals and affix their seals on them. With the passage of time, monetary system was taken over by the government authorities and that's when new classifications came in. हमने देखा है कई जो फिक्शनल चैनल्स, फिक्शनल सीरीज थी, उसमें हमने देखा है महाभारत हो, रामायण हो, or maybe any other fictional stories where kings and queens used to be the setup. They used to give some reward. वो coins देते थे. अपने अपने किंगडम का खुद का उसके ऊपर स्टैंप होता था, कॉइन्स देते थे विच हैड सम वैल्यू. बहुत ज्यादा कॉइन्स, अच्छा काम किया. 4 कॉइन्स, चलो ठीक है, नॉर्मल रिवॉर्ड. तो ये जो स्टैंपिंग करते थे हर एक कॉइन के ऊपर, इससे ही सिस्टम निकली कि हर एक देश की अपनी अपनी खुद की अलग सिंबॉलिक करेंसी होनी चाहिए. उसी के बाद इंडिया, यूएस अडॉप्टेड व्हाट वाज कॉल्ड एज द यूएस डॉलर एंड इंडिया अडॉप्टेड व्हाट वाज कॉल्ड एज
व्हाट वाज कॉल्ड एज द इंडियन रुपीज, जिसको हम लोग बाद में रूपी करके सिंबॉलिक टर्म आ गई। सो मेटालिक कॉइन्स में सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन सा था? स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स। फुल bodied coins are those whose face value is equal to their intrinsic value. Face value indicates the exchange value fixed by the issuing authority. मतलब अगर हम लोग लेते हैं आज के तारीख में कॉइन जिसकी कीमत है 1 रुपये, तो 1 रुपये अगर कीमत है तो इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है उसकी फेस वैल्यू सिमिलर है ₹1, उसकी फेस वैल्यू सिमिलर है ₹1. सो एवरी कॉइन वुड हैव अ स्टैंडर्ड फुल बॉडीड इंट्रिंसिक वैल्यू अटैच्ड टू इट. These coins are made out of precious metals like gold, silver, etc. Standard coins were used for some days during the British period as well. Token coins are those whose face value is higher than their intrinsic value. These coins are made of cheaper metals like aluminium, nickel. These coins are of lower denominations and are generally used for settling smaller transactions. फुल बॉडीड कॉइन्स, ये जो कॉइन्स थे फुल बॉडीड कॉइन्स, ओके, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने एक एग्जांपल बोल के दिया है. लेकिन जो ब्रिटिशों के ज़माने में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में कॉइन्स यूज किए जाते थे, दोज वर टू बी कॉल्ड एज द सिल्वर coins, gold coins, depending upon the intrinsic value, depending upon the mannerisms of the work being done. लेकिन जिसके उसके बाद जब आए टोकन कॉइन्स, इसका मतलब जो आजकल हम लोग कॉइन्स नॉर्मल सर्कुलेशन में है, अ वैल्यू बिंग अटैच टू इट, अ फेस के ऊपर जितनी वैल्यू है 1 रुपए वो उतनी वैल्यू. लेकिन स्टैंडर्ड फुल बॉडीड कॉइन्स में क्या था, अगर ये गोल्ड का आइटम है तो गोल्ड की वैल्यू उसको अटैच रहेगी. If it's a silver coin, silver वैल्यू उसको अटैच रहेगी. If it's a platinum coin, platinum की वैल्यू उसको अटैच रहेगी. So जिस मेटल का कॉइन उस मेटल की वैल्यू. लेकिन आज के जमाने में हम लोग जो नॉर्मल टोकन कॉइन्स यूज करते हैं, जितनी वैल्यू उसके ऊपर प्रिंटेड है, मार्केट एवरीबडी, जितनी वैल्यू उसके ऊपर प्रिंटेड है उतनी ही वैल्यू उस मेटल को है, उतनी ही वैल्यू उसकी एक्चुअल करेंसी में अवेलेबल है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? दैट्स इट. उसके बाद दिया है हमने पेपर मनी. पेपर मनी मतलब नॉर्मल करेंसीज विच आर बीइंग यूज्ड इन सर्कुलेशन. मेटालिक मनी का प्रॉब्लम ऐसा होने लगा इवेंचुअली दैट मेटालिक मनी वाज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट. आपने अगर मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल यू पे मी 5,000 रुपीज एंड यू पे 5,000 रुपीज इन कॉइन्स ऑफ ₹1, विल दैट बी डिफिकल्ट टू कैरी? डेफिनेटली डिफिकल्ट टू कैरी. इसीलिए मेटालिक मनी वाज कंसिडर्ड टू बी एन हाईली डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगेन. इसको सब्स्टिट्यूट किया गया पेपर करेंसी से. सो पेपर करेंसी वाज कंसिडर्ड टू बी अनदर इंपॉर्टेंट. जो पेपर से बनी गई है, इजी टू ट्रांसपोर्ट, लाइट वेट, लेकिन इसको नॉमिनेशन, इसको जो ऑथेंटिकेशन है वो दिया जाएगा फर्स्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेक्स्ट बाय द RBI. क्लियर एवरीबडी? इसीलिए आप लोग और कोई भी 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए की नोट देखोगे तो उसके ऊपर लिखे दिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट by the Ministry of Central Government, signed and undersigned by the Governor of RBI. This was the basic thing being attached to it. That was called as the paper money, जिसको हम लोग कहते हैं it's a simple paper which is finely used for printing money. लेकिन वो पेपर का क्वालिटी, उस पेपर का GSM साइज, उस पेपर का फाइन प्रिंट, वो सब डिसाइड किया रहता है बाय एंड ऑफ द डे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. नेक्स्ट वन, बैंक मनी और क्रेडिट मनी. दोनों तरह के बैंक मनी है या क्रेडिट मनी है. ध्यान दो. यू गिव मी मनी, आई रिसीव मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक. मुझे चेक मिलता है एंड दिस चेक आई रिसीव, क्रॉस किया गया है, मेरा नाम लिखा हुआ है, अमाउंट, दैट्स इट, रुपीज. दिस इज द चेक दैट आई हैव रिसीव्ड. इज दिस चेक मनी इटसेल्फ? नो, दिस इज अ बैंक मनी. मतलब क्या है? एग्जैक्टली दिस चेक कैनॉट बी एनकैश्ड इन माई हैंड्स. आई नीड टू गो टू द बैंक, आई नीड टू डिपॉजिट द चेक इन टू माई अकाउंट. किसी ने मुझे चेक दिया है, उस अकाउंट होल्डर के अकाउंट में से उतनी अमाउंट डेबिट होगी, मतलब डिडक्ट, और उतनी ही अमाउंट मेरे अकाउंट में, जो चेक के साथ हम लोग स्लिप भरते हैं, उतनी ही अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगी. दैट इज कॉल्ड एज डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री. दिस इज कॉल्ड एज द बैंक मनी और क्रेडिट मनी. मतलब द मोमेंट I am giving you check, that is not the time when I am going to get money. the moment when I am going to give you a check, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पेमेंट तुरंत कर रहा हूँ. आप वो चेक भरोगे, you will fill the slip over it, you will go to the bank, you will deposit it, clearing होगा चेक का, और 2 दिन बाद आपको पैसे मिलेंगे, called as bank money.
और क्रेडिट मनी में क्या दिया है? क्रेडिट मनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी. कैशलेस ट्रांजैक्शंस गेन इंपॉर्टेंस, राइट. कैशलेस चेक दिया मैंने आपको, आई गिव यू अ चेक बाय योर नेम ओनली, दैट वुड गेट डिपॉजिटेड इनटू ओनली योर अकाउंट. नोबडी वुड बी rightfully liable, rightfully holding that money in his or her account. Simple terms, simple thing my dear students, it is because जिसका नाम उस चेक के ऊपर और उस नाम का जिस किसी बैंक में अकाउंट, that is the person will be get, that person only will be responsible to get the money on that check. Am I clear everybody? Number one. Number two, कैश में ये प्रॉब्लम है. कैश पॉसिबिलिटी ऑफ एनीबडी ट्राइंग टू रॉब ऑफ द कैश ये है. चेक का वैसा नहीं है. चेक दिया है, क्रॉस पेमेंट है, इट्स अ मोर क्लियर कट ट्रांजैक्शन. मूव ऑन फर्दर. प्लास्टिक मनी इज easy to use in transaction due to advanced technology. Plastic money is easy to use in transaction due to advanced technology. Debit cards and credit cards are used as plastic money. Further innovation in smart transactions led to introduction of electronic money. हम लोग जो डेबिट कार्ड पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ प्लास्टिक मनी. इट्स अ सिंपल कार्ड, उसको एक पिन अटैच किया रहता है. जब तक वो पिन वैलिडेट नहीं होगा तब तक कार्ड का कुछ यूज नहीं है. सो एनीबडी कैन यूज इट बट नोबडी कैन हैव द कंप्लीट राइट ओवर द कार्ड. दैट्स द बेस्ट फीचर ऑफ प्लास्टिक मनी. उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी, ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी. मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वर्चुअली पैसा डेबिट हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होगा, किसी और के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा. दैट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑफ मनी. दैट्स इंटरनेट. नो डिसएडवांटेज, नथिंग, इजी ऑफ, रिस्क नहीं है, कुछ नहीं. हाँ, रिस्क एक ही है, आपको आपके पासवर्ड्स सिक्योर रखने पड़ेंगे. आजकल आपने देखा होगा, आपको फोन आते हैं बैंक से या किसी भी नॉर्मल कोई भी आदमी कॉल करता है. इफ द इंटेंशन इज ऑफ ओनली फ्रॉड, कि इतने पैसे हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाले, आपका अकाउंट नंबर दे दो, आपका पैन नंबर दे दो, आपका आधार नंबर दे दो, एंड वी गेट फूल्ड. अब सब डिटेल्स दे देते हैं एंड विद इन नो टाइम हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट. दैट्स फ्रॉड. देयर इज सम फ्रॉड, दैट फ्रॉड इज कॉल्ड एज फिशिंग फ्रॉड, PHISHING, जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है. सो प्लीज बी सिक्योर. लेकिन इंटरनेट बैंकिंग हैज टर्न्ड द वर्ल्ड, इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग हैज made a wonderful change in the total economy of the world, and that's the best feature of this again. So coming back everybody, what is it everyone? And nowadays of course we have something called as Paytm. Okay, we have something called as GPay, we have something called as PhonePe as well. So varied options with regards to payment schemes have been introduced with regards to the entire online digital payment systems. As simple as that everybody. Okay, yes. So just to classify and clarify with everybody, कितने types of money हमने देखे. We have seen evolutions of money. Just a quick fire revision everybody. क्विक फायर रिवीजन. एवोल्यूशंस ऑफ मनी के बारे में हमने देखा है, जिसमें देयर हैव बीन 8 टाइप्स इनटू इट. सबसे पहले है एनिमल मनी, ठीक है. दूसरा वी हैव सीन व्हाट इज कॉल्ड एज कमोडिटी मनी. थर्ड वन वी हैव सीन व्हाट इज कॉल्ड एज मेटल. फोर्थ वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटालिक. फिफ्थ वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज आफ्टर मेटालिक मनी इज व्हाट वी हैव सीन, जिसको एक्चुअल में टर्म्स है, इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन्स, फुल बॉडीड कॉइन्स, इसमें 2 तरह के कॉइन्स हैं. ओके, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी. 2 तरह के कॉइन्स हैं विच इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड कॉइन्स, मतलब जो ब्रिटिशों के ज़माने में दिया जाता था, और दूसरे है टोकन कॉइन, जो आज के ज़माने में सारे देश में सर्कुलेशन में है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेपर करेंसी, एंड द second last one is called as plastic money, credit cards and debit card payment, and the last one is what is called as electronic money. Last one is what is called as electronic money. Is that clear everybody? So these are the varied transactions, these are the varied options, these are the varied types of evolutions of money which have been introduced in the market right since the evolutions of Indian banking system.
ओके इसमें और एक पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज नॉट एग्जैक्टली इन रिगार्ड्स टू डियर स्टूडेंट्स विद रिगार्ड्स टू मनी, नॉट एग्जैक्टली इन रिगार्ड्स टू दिस टॉपिक, बट थोड़ा एडिशनल पॉइंट्स कुछ है विच आई वुड पर्सनली लाइक टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू. So coming back to this everyone, okay, so students, in between I am going to discuss an important part with regards to not this chapter lekin a thing which is considered to be a heart and soul of Indian economy and apart from agriculture, that is the Indian banking system. इसके बारे में भी मैं इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा, but just that I'll discuss what is there in this first and then I'll go for the extra part of this. Next types of money which you and me should know completely is what is called as legal tender money और दूसरे है what is called as non-legal tender money. ध्यान दो everybody, legal tender money and non-legal tender money. What is the meaning of legal tender money? It is backed by law and cannot be refused in transactions by anybody on any ground. In India all coins and currency notes are legal tender money. आपको एक बात बताता हूँ, आई रिमेंबर जब नोटबंदी हुई उसके बाद गवर्नमेंट ने 10 रुपए के कॉइन्स मार्केट में थोड़े ज़्यादा आने लगे. आई स्टिल रिमेंबर आई हैड बीन टू फिल पेट्रोल भरते वक्त समथिंग हैपेंड एंड आई हैड टू पे हिम 410 रुपीज़. 400 रुपये मैंने उसको दिए, 10 रुपये का मेरे पास कॉइन था तो कॉइन दिया. ही रिजेक्टेड इट. वाई? बिकॉज ही सेड नो कॉइन्स इज वॉट वी टेक. आई टोल्ड हिम दिस इज नॉट पॉसिबल, ये लीगल टेंडर है और जो गवर्नमेंट ने कॉइन्स दिए हैं, जो गवर्नमेंट ने नोट्स दिए वो एवरीवेयर इन इंडिया सर्कुलेशन में है एंड दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड. रिजेक्टिंग अ करेंसी इज लाइक रिजेक्टिंग द नेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एज वेल. Mark it everybody. So please make sure you understand this thing. Legal tender money. Non-legal tender money मतलब no legal compulsion of acceptance. It can be refused. Check, bills of exchange are examples of this money. It is also known as optional money. ऐसा होता है नहीं, मुझे चेक पेमेंट मत करो, मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, मुझे कैश में ट्रांजैक्शन दो, मुझे कैश पेमेंट करो. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन लीगल टेंडर मनी. ध्यान दो, नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब इलीगल नहीं है. नॉन लीगल टेंडर मनी मतलब इल मनी या ब्लैक मनी नहीं है. इट इज अ मनी विच इज यूज्ड बट इट इज ऑप्शनल फॉर द एक्चुअल करेंसी. दैट इज कॉल्ड एज द नॉन लीगल टेंडर मनी. सो इसमें हम लोग एक और पार्ट ऐड करेंगे हमारे एवोल्यूशंस में, टाइप्स ऑफ मनी में, व्हाट इज कॉल्ड एज नॉन लीगल टेंडर मनी एंड लीगल टेंडर मनी. दैट्स एज सिंपल एज दैट एवरीबॉडी. ओके आगे निकलते हैं. अभी क्वालिटीज ऑफ मनी, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एवरीबडी एक्सेप्ट्स मनी, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 1. नंबर 2 डिविजिबिलिटी. मनी शुड बी डिविजिबल. मतलब अगर मैं कहूँ कि नहीं हमारे इंडिया में सिर्फ 500 और 2000 के नोट से सर्कुलेशन में है, तो क्या प्रोडक्ट की कीमत भी 500 2000 ही रहेगी, बीच में नहीं रहेगी वैल्यू कुछ? ऐसा नहीं है. सो देयर हैज टू बी डिविजिबिलिटी ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू स्मॉलेस्ट, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट टिल द बिगेस्ट यूनिट. मतलब मुझे 4 रुपए की चीज खरीदनी है तो भी मेरे पास पैसों की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए. मैं ऐसा नहीं कह सकता नहीं 5 रुपए के कॉइन्स ही है हमारे पास, तो पैसे ही नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं हो सकता. इफ आई गिव यू 5 रुपीज, इफ द अमाउंट इज 4, यू नीड टू रिटर्न मी 1 रुपीज. इसलिए मनी की डिविजिबिलिटी होनी चाहिए. मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट का भी पैसा हो, बड़े यूनिट का भी पैसा हो. दैट्स एज डिफरेंशिएटेड. डिफरेंस बिटवीन द टू इज एज फॉलोज. क्लियर एवरीबॉडी? नंबर 2. दैट्स व्हाई इन इंडिया नाउ इट इज नॉट एज सच, मतलब डिस्कार्ड हो गए इनडायरेक्ट. लेकिन पहले इंडिया में ना 1 पैसा, 1 पैसा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रुपी, 1 पैसे, 5 पैसा, 10 पैसे, 25 पैसा, इतनी भी कॉइन्स थे. 50 पैसा, 100 हो गया तो 1 रुपी, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000 एज ऑल डिविजिबिलिटीज ऑफ मनी. मतलब प्रोडक्ट की कीमत कुछ भी हो, भले वो 800 हो, 900, 940 हो, 920 हो, 1030 हो, कुछ भी कीमत हो, दैट मनी शुड हैव, वी शुड हैव द राइट टू गिव एज मच मनी एट दैट हैज बीन एक्रूड. जितना पेमेंट है उतना हम पेमेंट कर सकते हैं. इसीलिए स्टबर्न मनी यूज में नहीं है. स्टबर्न मनी मतलब नहीं, हमारे कंट्री में सिर्फ 500 और 2000 के नोट्स ही हैं, बीच में कुछ नहीं है, तो हमारे प्रोडक्ट की कीमत भी है इसलिए 500 ही है या तो 2000 है. इट कैनॉट हैपन. दैट हैज टू बी डिविजिबिलिटी इज बीइंग मेड प्रॉपर्ली. नेक्स्ट वन, ड्यूरेबिलिटी. मनी शुड आल्सो possess the characteristics of durability. Currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years together on account of durability.
currency notes and coins are being used repeatedly and shall continue to do so for years to come. Money, अरे आज पैसा गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर करेगी, अपने हाथ में पैसे आते हैं, दैट वी आई गो टू द शॉप, आई परचेज समथिंग, पैसे दिए, ही विल गिव इट टू पर्सन टू हुम ही हैज टू पास इट ऑन फर्दर, दैट पर्सन विल गिव इट आउट टू समवन एल्स. सो ये ट्रांजैक्शंस, ये मूवमेंट होने वाली है पैसों की, इसलिए पैसा ड्यूरेबल होना चाहिए. करेंसी शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, इट शुड नॉट बी इन पुअर और चीप क्वालिटी. मैंने आपको दिया, आपके हाथ में आते थे पैसा, टोन ऑफ, प्रिंट गया, नॉट वैलिड. इट हैज टू बी ड्यूरेबल. कॉग्निजेबिलिटी, मनी मस्ट बी इजीली recognized. It should have certain distinct marks so as to avoid confusion by the receiving person. Yes, हमारी करेंसी के ऊपर देखो, every currency of India has some value attached to it. Every currency of India has some value attached to it. Every currency of India has some peculiarities being attached to it. हमारे करेंसी में गांधी जी का सिंबल है, हमारे गांधी जी का फोटो है, हमारे करेंसी में हमारे पूरे एम्बलम का, हमारे पूरे पार्लियामेंट का फोटो है. दैट्स अ पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक. बीच में फाइन ग्रीन कलर के मार्किंग्स है टू प्रूव दैट येस इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर RBI ओनली. It is being signed by the Reserve Bank of India governor. So government currency जो है, हमारी जो करेंसी है वो cognizable है, मतलब recognize कर सकते हैं. Portability, it should be easy to carry from one place to another. Currency notes are easily portable. Coins carry करना थोड़ा difficult है, but yes, carrying currency, carrying plastic money, carrying checks is the most easiest thing that we can do. So again features में क्या है, money के features acceptability है, divisibility है. एवरीबडी एक्सेप्ट्स मनी, डिविजिबल है, उसके प्रॉपर डिनोमिनेशंस में डिवाइड किया गया है. ड्यूरेबिलिटी, इट इज प्रॉपरली ड्यूरेबल, एट द सेम टाइम इट इज एब्सोल्युटली, इट शुड बी वर्दी इनफ टू स्टे फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. कॉग्निजेबिलिटी है, मतलब पैसे को कुछ ना कुछ वैल्यू एंड इट शुड हैव सम सिंबॉलिक थिंग्स अटैच्ड टू इट. It should have the portability. Portability मतलब it should be easy to carry from one place to another without any difficulty. कोई भी difficulty के बिना पैसा carry करना आना चाहिए. Did you get this thing, everybody? Wonderful. Let's move on, everybody. Next is homogeneity. मतलब मेरे पास 500 की नोट है, आपके पास 500 की नोट है, किसी और के पास, हमारे दोस्त के पास 500 की नोट है, हर एक 500 की नोट को वैल्यू सेम है, just the carrier is different. That's it. So it should be homogeneous. मेरे पास 500 की नोट है लेकिन उसको वैल्यू 2000 की, आपको पास 500 की नोट है लेकिन उसकी वैल्यू सिर्फ 1100 है. It cannot happen. Every money, every currency, every note, every coin should have a same value, an absolutely bang on same value attached to it. This is called as the biggest feature of homogeneity of money. Move on further. Stability. Money should have a stable monetary value. It serves as a measure of value to exchange goods and services. Money should have a stable monetary value. It serves as a measure of value to exchange goods and services. These goods can be sold and purchased in future as per requirements. These goods can be sold and purchased in future as per requirements. And that is why money has a stable value attached to it. That's why money has a stable value attached to it. Okay, next one. अभी करते हैं functions of money. Functions of money, my dear students, a very important question, a very prime important question for everybody, and we got to see to it that we learn this thing in detail without any haphazardness. So we are going to look for what is called as functions of money. Functions of money करते वक्त, dear students, one thing is very important to understand is that this question comes in the paper for a total of 5 full marks. 5 marks के लिए question आता है पेपर में. I'm repeating again, this question comes in the paper for a total of 5 marks. It's a compulsory question. दूसरा ये है that इसमें ये आपको comparative analysis पूछते हैं. इसमें आपको ये लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पूछते हैं एंड यू गॉट टू मेक श्योर दैट यू गिव दैट कंपैरेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ओनली. फर्दर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, सो प्राइमरी फंक्शन इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सोर्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी. मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. Measure of value
और यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका मतलब क्या है, पैसे को कुछ वैल्यू अटैच्ड है, पैसे को कुछ यूनिटरी मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड है। इसका मतलब क्या है, हर एक कंट्री की अपनी अपनी खुद की यूनिक वैल्यू है। इंडिया में रुपी है, यूएस में डॉलर है, यूरोप में यूरो है, यूके में पाउंड्स है, जापान में जापानीज येन है, दुबई में दुबई बात है। So everybody has their own intrinsic value, everybody has their own unique currency of value। इसका मतलब है measure of value और unit of account। लेकिन हर एक इसकी वैल्यू अपनी अपनी अलग है। आज की तारीख में अगर हम यूएस डॉलर की प्राइस देखें तो वो 75 रुपीज़ है, यूरो की प्राइस देखें तो वो 80 रुपीज़ है, पाउंड्स की प्राइस देखें तो वो और कॉस्टली है। Japanese yen is considered to be costlier again, 170 rupees something। So end of the day एवरी करेंसी हैज इट्स ओन वैल्यू। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में सिर्फ यूएस डॉलर ही यूज किया जाता है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक वन वीडियो विद रिगार्ड्स टू व्हाई ओनली यूएस डॉलर इज बीइंग यूज्ड एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक मेजर ऑफ करेंसी। Okay, so I'm definitely going to make one video with regards to it कि why only US dollar is used as a global economic measure of value, and why not, of course, why not Indian rupee, why not Australian dollar, why not UK pounds, why not European euro is used, why only US dollar? क्या US वर्ल्ड की इकोनॉमिक सुपर पावर है इसलिए? क्या US अपना खुद का सुपर पावर नोशन सबके ऊपर बनाए बैठा है इसलिए? या यूएस को वो यूएन ने दर्जा दिया है इसलिए? ये क्या रीजंस है कि यूएस की ही यूएस डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एवरीवेयर? इसके लिए हम जरूर एक बात करेंगे। लेट्स मूव ऑन फर्दर एवरीबॉडी। सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, मतलब जैसे हमने देखा है लोन्स लेते हम लोग फ्यूचर में पेमेंट्स करते रहते हैं, एडवांस में पैसा लेते हैं, फ्यूचर में पेमेंट्स करते रहेंगे, वो पैसा ही कर सकता है। नो बार्टर सिस्टम कैन बी यूज्ड ओवर देयर। स्टोर ऑफ वैल्यू, जेम केन्स कहते हैं मनी इज अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। आज मेरे पास पैसा है, मैंने पैसा मेरे तिजोरी में रखा, वो मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, लेकिन वही पैसा अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में लगाता हूँ, शेयर्स में लगाता हूँ, आरडीज में लगाता हूँ, एलआईसी पॉलिसीज में, इफ आई पुट दैट मनी, माई मनी इज गोइंग टू गिव मी रिटर्न्स। बेटर द रिटर्न्स, बेटर द प्रॉफिट। सो मनी की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती रहती है, स्टोर करने से नहीं बढ़ेगी, लेकिन मनी को जो खुद की अपनी एक वैल्यू है वो वैल्यू तभी बढ़ेगी व्हेन द मनी विल स्टार्ट गेटिंग इन्वेस्टेड। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी enables transfer of value from one person to another and from one place to another. Real assets like building, plot, shop can be sold at one place and can be purchased at another place with the help of money. There are two types of assets, my dear students. You guys are in 11th, you will understand this carefully. क्या बोल रहा हूं मैं? असेट्स के ना दो तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ एन एसेट विच इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड असेट, और दूसरा टाइप ऑफ एन एसेट विच इज कॉल्ड एज ए फिक्स्ड असेट एंड फ्लोटिंग असेट। मतलब क्या है? फिक्स्ड असेट मतलब ऐसी असेट जो जमीन के ऊपर फिक्स्ड है, यू कैनॉट मूव इट, you cannot move it, you cannot take it off anywhere, that's a fixed asset। लेकिन floating asset मतलब you can move it, pen, mobile phone, TV, computers, laptops, fans, ACs, ये floating assets है। asset क्या है? end of the day asset वही है जो आपको आपके डेली रूटीन में मदद करती है। फर्नीचर मदद करता है, लैपटॉप मदद करता है, एसी मदद करता है, फैन मदद करता है। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो मदद करती है चीजें, उनको हम लोग असेट्स कहते हैं। और इसका बाइफर्केशन है फिक्स्ड और फ्लोटिंग में। फिक्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड असेट। मूविंग असेट्स आर कंसिडर्ड टू बी फैन, एसी इज मूविंग, आर कॉल्ड एज मूविंग असेट्स। These are also called as floating assets। लेकिन मैं कहता हूं अगर मैंने जमीन खरीदी, it does not mean that I purchased the plot, I purchased that land, I get it and I put it in my house। I simply made a documented transaction over there। वो फिक्स, लेकिन मैं उसने डॉक्यूमेंटेड ट्रांजैक्शन किया, मैंने पैसे दिए, वो जमीन मेरे नाम के ऊपर हो गई। मेरी कुछ जमीन है वो मैंने बेच दी किसी को, डॉक्यूमेंट किया, उसके ऊपर का डॉक्यूमेंट उसके नाम के ऊपर किए, पैसे लिए, मैंने किसी दूसरी जगह पे जमीन ली। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पैसों को है ट्रांसफर वैल्यू डियर स्टूडेंट्स। मूव ऑन फर्दर। कॉन्टिंजेंट फंक्शंस। कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंट फंक्शंस मतलब
मिसलेनियस भी हो सकता है, बट मोर प्रिसाइजली कॉन्टिंजेंट का मतलब है समथिंग विच इज सडन, समथिंग विच इज अनसर्टन, इसका मतलब है कॉन्टिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी. According to Professor Kinley, in the modern period, money plays an important role almost in all economic transactions. आप एक ट्रांजैक्शन बोलो जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलो, नॉट पॉसिबल. Every financial transaction, every economic transaction, every monetary transaction has money. Measurement of national income. नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, अपना खुद की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है, क्या है, मनी की वजह से ही देख सकते हैं हम लोग. Financial position is always measured, your financial position is always measured in terms of money only. Basis of credit, commercial banks create credit money on the basis of primary deposits. Commercial banks create credit money on the basis of primary deposits. Money provides a liquid base for creation of credit money. Money provides a liquid base for creation of credit money. मतलब क्या है, व्हाट इज लिक्विडिटी क्रिएशन, मतलब लोन्स, हमको लोन चाहिए, क्या हम लोग लोन बार्टर सिस्टम के रूप में ले सकते हैं या मनी के रूप में ले सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, राइट. सो लोन्स आर ऑल्सो इन टर्म्स इनडायरेक्टली दोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मनी ओनली. फर्दर, imparts liquidity to wealth. Money is called the most liquid asset. Money is called the most liquid asset. Person can purchase gold and if he wants he can sell and purchase government bonds and securities. Liquid मतलब जिसको easily हम लोग सेल करके पैसा मिला सकते हैं. मेरे पास गोल्ड है, गोल्डस्मिथ के पास गया, पैसे दिए, गोल्ड दिया, पैसे लिया, आई एम ओके विद इट. मनी इज द मोस्ट लिक्विड, इजीली अवेलेबल हो सकता है. लैंड इज नॉट इजीली अवेलेबल. लैंड को मैं बेच सकता हूँ लेकिन इजी मनी नहीं है. जैसे गोल्डस्मिथ के पास सुबह लगा मुझे पैसा चाहिए, गया ज्वेलर के पास, गोल्ड दिया, पैसे लिए, आई एम ओके विद इट. लैंड का ऐसा नहीं है ना, बिकॉज लैंड हैज़ अ ह्यूज वैल्यू. उतना कोई तो बायर चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, नोटरी करना पड़ता है, सिग्नेचर करनी पड़ती है, डॉक्यूमेंटेशन का लीगल फॉर्मेलिटीज़ में भर के लाना पड़ता है, तभी मुझे लैंड में परचेस कर सकता हूँ ना. इसीलिए मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो लिक्विडिटी पैदा करने की, मतलब कैश जनरेट करने की जो उसकी खुद की अपनी एक वैल्यू है, वो सिर्फ मनी ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता. फर्दर, एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, total savings, total investment can easily be estimated in monetary terms. Can easily be estimated in monetary terms. मतलब मैं कहता हूँ मेरा इंडिया ग्रो कर रहा है, अरे कैसे ग्रो कर रहा है, ग्रो करने के लिए there is GDP as an indicator which is called as gross domestic product. ये दो इंडिकेटर्स ऐसे हैं ना कि जो मैं कहता हूँ कि दिस इज द ग्रॉस GDP और नेशनल इनकम. ये दो इंडिकेटर्स है जो मुझे कहते हैं कि मनी, जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिस लेवल से कंट्री हमारी ग्रो हो रही है, उसके लिए सिर्फ जीडीपी और नेशनल इनकम ही है, और इनको हम लोग मेजर करते ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी. इफ आई से माई इंडिया इज ग्रोइंग, अरे कैसे ग्रो कर रहा है, कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है, लेट्स से 5% से, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, 5% मतलब क्या, लोगों का इनकम, लोगों की सेविंग्स, लोगों की इन्वेस्टमेंट, इन सबको एक साथ लेके हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू कुछ परसेंटेज में है. Clear everybody? Yes. Now we welcome all of you to the concept called as black money. Now black money is a huge thing. I mean, I'm sure you guys have studied this thing well in advance. बहुत पहले से आपने किया है. black money क्या है, बहुत पहले से आपने ये भी किया है something called as कि sir that is black money मतलब illegal money. Now please pay attention everybody, okay? Black money is not illegal money. I'm repeating again. Black money is not illegal money. ब्लैक मनी इज अ मनी जिसके ऊपर आप और मैं टैक्स नहीं भरते हो, उसको हम लोग को कहते हैं ब्लैक मनी. ध्यान दो एवरीवन, ठीक है. पे अटेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी. क्या कंसेप्ट है ब्लैक मनी की? कंसेप्ट नंबर 1, ध्यान दो, मिस्टर ए के बारे में बात करें हम लोग. मिस्टर ए का इनकम, एनुअल इनकम है लेट्स से 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपए इनकम है. लेकिन इस 20 लाख में से मिस्टर ए 15 लाख रुपए चेक के रूप में कमाते हैं. ही अर्न्स इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर, उनको पैसे आते हैं 15 लाख रुपए. उसकी एंट्री आ गई बैंक के पास.
गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल है ना? गवर्नमेंट का ये कि नहीं, आपके बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा है, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड में इट्स विजिबल कि आपको 15 लाख रुपए इनकम मिला है, तो आपको उसके ऊपर टैक्स भरना लाजमी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो इसके ऊपर मिस्टर ए पेज टैक्सेस। लेकिन मिस्टर ए कहता है यार 15 लाख के ऊपर तो मुझे टैक्स भरना पड़ा है, ओके, लेकिन 5 लाख रुपीज मिस्टर ए को सिर्फ और सिर्फ कैश के रूप में मिली है, और मिस्टर ए ये 5 लाख रुपए कैश ना बैंक में डिपॉजिट करता है ना किसी को जाके देता है, he keeps it with himself. Is government going to come at his home, his place and check कि भाई देखो आपकी कैश कितनी है? ये प्रॉब्लम कब आएगा? जब डिमोनेटाइजेशन होगा। लेकिन डिमोनेटाइजेशन हर बार नहीं होता है ना, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, it's once in a lifetime thing. So this 5 lakh which it does not show to the government of India, और अगर दिखाते ही नहीं है, रिवील नहीं करते हैं जितना इनकम है, तो उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली टैक्स भी नहीं भरेंगे, और अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो क्या उसको हम लोग इलीगल मनी कहते हैं? नो, इट्स अ लीगल मनी, जस्ट दैट मनी इज मनी ऑन विच नो टैक्स हैज बीन पेड, इसीलिए उसको ब्लैक मनी कहा जाए। ब्लैक मनी मतलब हिडन मनी। ब्लैक मनी का मतलब है हिडन मनी, एंड प्लीज अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, इट इज हिडन, दैट मीन्स अ पर्सन हैज नॉट टेकन इट बाय एनी अनफेयर मीन्स, जस्ट दैट ही इज नॉट विलिंग टू पे एनी टैक्स ऑन इट। उसको जितना टैक्स भरना है उतना वो रिवील कर रहा है कि जितना ही टैक्स मिला है। क्लियर एवरीबडी? नाउ यू विल क्वेश्चन मी कि सर 15 लाख रुपीज आए तो वो उसमें से भी कुछ पैसे निकाल के बोल सकता है ना गवर्नमेंट को, नहीं मेरा इनकम उतना ही हुआ है? नो। अरे गवर्नमेंट को दिखा ना कि हर महीने आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे हैं, हर महीने आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहे, गवर्नमेंट को दिखा, तो गवर्नमेंट विल चेक दैट 15 लाख रुपीज आप कितने निकालते हो। 15 लाख आ जाए, कल आपने निकाल के क्या किया, नो कंसर्न, आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आए ना, 15 लाख हर महीना मतलब साल के 15 इंटू 12 1 करोड़ 80 लाख रुपीज के ऊपर आप टैक्स भरोगे। एज सिंपल एज दैट माय डियर स्टूडेंट्स। Did you understand? This concept is called as the concept of black money. हाँ, गवर्नमेंट हर बार आजकल आपने देखा होगा कि स्विस बैंक में बहुत काला धन छिपा हुआ है। काला धन मतलब जो हमारे यहाँ के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने वो इनकम दिखाया ही नहीं है, वो इनकम जाके छुपाया है इन स्विस बैंक अकाउंट, वो इनकम जाके छुपाया है स्विस बैंक अकाउंट में। मतलब अगर आपको आते हैं फॉर एग्जांपल 20 लाख, लेकिन इसमें से आपने कंपल्सरी बोला कि मुझे 5 लाख ही चेक में दो, बाकी 5 लाख जो है वो बाकी 15 लाख मुझे कैश में चाहिए, तो ये 15 लाख के ऊपर आप टैक्स नहीं भरोगे। ऐसा लोगों ने डिपॉजिट करते 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 स्विस बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए, जो कहते हैं आजकल पीपल टॉक अ लॉट अबाउट ब्लैक मनी। दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। लेकिन एक बात देखो, घर में ज़्यादा पैसे रखना भी इट्स नॉट दैट गुड इनफ। जो 8 नवंबर 2016 को हुआ डीमोनेटाइजेशन, जिसका मतलब है नोटबंदी जो हुई, नोटबंदी में क्या हुआ, नोटबंदी में गवर्नमेंट ने कहा कि आज से 500,000 के जो नोट्स लीगल सर्कुलेशन में थे, लीगल टेंडर मनी था, वो डिसकंटिन्यू। कल आज रात 12 बजे से उसको कुछ वैल्यू नहीं है। क्या बात है, आज रात 12 बजे से उसको कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो आपके घर में अगर 10 लाख रुपए ऐसे हैं 500,000 के नोट में, खलास, नो वैल्यू, जल्दी बैंक में जाओ, डिपॉजिट करने को कहा गवर्नमेंट ने। तो एक्सेस कैश इन हैंड इट्स ऑल्सो नॉट दैट गुड इनफ। एक्सेस कैश इन हैंड इज ऑल्सो नॉट दैट गुड इनफ। यू नीड टू हैव सम कैश, यू नीड टू हैव सम करेंसी इन टू योर हैंड, बट एंड ऑफ द डे सी टू इट दैट यू पुट इट एट अ राइट प्लेस, यू इन्वेस्ट इन द राइट प्लेस, ताकि आपको ही एंड ऑफ द डे उसका कुछ नुकसान ना भरना पड़े। Clear everybody? So this was a topic, second topic with regards to economics called as money. Thank you so much everyone. Okay, so students, as noted to everybody, I'm going to talk something about Indian banking system. ठीक है? You know, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, अपने को ऐसा लगता है, वी फील दैट यार इज सच अ क्योटिक बैंकिंग सिस्टम। कितने बार बैंकों के इधर जाके हमको रुकना पड़ता है, लाइन में रुको, पीपल डोंट लुक एट यू, पीपल डोंट गिव यू प्रॉपर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। With all due respect to all the problems that we as individuals face, with all due respect to all the minor glitches that we all face on a daily basis with Indian banking system, yet
The Indian banking system is considered to be one of the best banking systems in entire world. ऐसा रिपोर्ट दिया है IMF ने. IMF का मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ही ऐसा रिपोर्ट दिया है कि इंडियन बैंकिंग बेस्ट है. I'll tell you the reasons why, dear students. Pay attention. Students, Indian banking system की सबसे पहले हकदार है RBI, जिसकी एक्ट पास की गई थी बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द इंडियन एजुकेशनिस्ट. एक्ट पास की गई थी 1934 में और जिसका एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ 1 अप्रैल 1935 को. 1 अप्रैल 1935 से इंडियन बैंकिंग सिस्टम शुरू हुई अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बिकॉज टिल दैट टाइम ऑल द बैंक्स वर स्कैटर्ड. किधर किधर छोटी मोटी बैंक है, गांव की बैंक है, रूरल बैंक है, अर्बन बैंक, सेमी अर्बन, स्टेट लेवल, सो इट वाज ऑल स्कैटर्ड. तो गवर्नमेंट ने कहा इन सब बैंकों को हम लोग एक हेड के अंडर लाके खड़ा कर दें, जिसका नाम था RBI. RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. RBI का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर खड़ा कर दिया. क्या बात है, वंडरफुल. लेकिन इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स, RBI ने क्या किया? RBI ने कहा कि वी वुड बी कॉल्ड एज एन एपेक्स बैंकिंग, और हमारे अंदर, हमारे कंट्रोल के अंदर इंडिया की जो भी बैंकिंग सिस्टम रहेगी, जो भी बैंक होनी है इंडिया में, आप शुरू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसका कंट्रोल RBI के पास रहेगा. कंट्रोल रहेगा मतलब क्या? RBI हर बार आपके बैंक में इंटरफेयर करना चाहेगी क्या? बिल्कुल भी नहीं. RBI will not interfere into your bank every time, लेकिन RBI at every point of time will see to it that you are being nicely doing your business. आपको एक गाइडेंस का काम करेगी, आपके ऊपर एक वॉचडॉग बन के काम करेगी. क्या काम करेगी? आपके ऊपर एक वॉचडॉग बन के काम करेगी. वंडरफुल. नजर रखेगी. आई होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड, है कि नहीं है? ऑल दिस थिंग्स वुड बी डन बेटर बाय RBI, and that is why RBI would be considered as one of the epic banking institutions in the entire banking history. Is that clear everybody? Good. Now RBI ने क्या किया? RBI ने कहा कि दो पार्ट्स में हमारी बैंकिंग सिस्टम जो है वो क्लासिफाई की गई जाएगी. वन वुड बी कॉल्ड एज कमर्शियल बैंक्स एंड अदर वुड बी कॉल्ड एज नॉन कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक मतलब वो बैंक जो कस्टमर यूसेज के लिए रहेगी. हम और आप जिस बैंक में जाते हैं उसका नाम है कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक. फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर RBI ने कहा नेशनलाइज बैंक. ऑल द बैंक्स विच वुड बी गवर्न्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम लोग नाम देंगे नेशनलाइज बैंकिंग सेक्टर. दूसरा RBI ने कहा जो भी प्राइवेट बैंक है वो भी RBI के खाते में ही आएगी. आप प्राइवेट बैंकों का एक्चुअल इंपटस मिला 91 में, जिस वक्त गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी करके एक पॉलिसी लाई, जिसमें प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस दिया. प्राइवेट लोगों को आपको बैंक शुरू करनी है, करो, मेक द बैंकिंग सिस्टम बेस्ट इन द मार्केट टुडे. जिसके तहत तीसरी बैंक लाई गवर्नमेंट ने, विच वॉज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक, विच वॉज कॉल्ड एज द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर. ये हो गए कमर्शियल बैंक्स. क्या आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाते हैं? हम लोग एक्सिस बैंक यूज करते हैं, हम लोग कॉस्मोस बैंक यूज करते हैं, कॉल्ड एज अ कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर. और नॉन कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर मतलब ऐसी बैंक जो सिर्फ और सिर्फ नो बिजनेस बट बेनिफिट्स. फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट्स कॉल्ड एज नाबार्ड. National Bank for Agriculture and Rural Development, that would be called as NABARD. As clear as that everybody? और इसमें दूसरी कैटेगरी आएगी, नाबार्ड के साथ साथ it would be called as credit cooperative societies. ये एग्जैक्टली नॉन कमर्शियल बैंक नहीं है, लेकिन ये ऐसी बैंक है, ये ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेशन का काम करेगी, लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी, जितना हो सके उतना बेस्ट पॉसिबल देगी.
So these are the banking institutions, this is the banking thing that RBI has done. लेकिन end of the day every bank is wholesomely responsible, wholesomely has to notify to the RBI. अगर किसी बैंक कुछ भी गफला करती है, कुछ भी any fraud, RBI will have the right to cancel the license of that bank straight away. Clear everybody? ये RBI है, इसीलिए RBI को कहा गया है एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, इसीलिए आरबीआई को कहा गया है एपेक्स बैंक. एंड दैट इज वेयर, जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे ही यूएस में देयर इज यूएस फेडरल रिजर्व, यूके में देयर इज बैंक ऑफ इंग्लैंड. These banks control their respective countries' entire banking sector. RBI is also considered to be a government's bank. ये गवर्नमेंट की बैंक है, इसलिए गवर्नमेंट जो भी फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करना चाहती है आरबीआई के साथ हर महीने के 15 तारीख को आरबीआई के साथ मिलती है एंड दे डिसाइड ओवर द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री एंड डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसीज टू बी डन एंड इम्प्लीमेंटेड. आरबीआई को बहुत काम है क्योंकि आरबीआई को 29 स्टेट्स के अंडर आने वाली सारी बैंक, उन सारी बैंकों की सब ब्रांचेस, उन सब के बारे में ख्याल रखना पड़ता है, उन सब के बारे में, उन सबके ऊपर एक वॉचडॉग करके काम करना पड़ता है. एंड दैट्स व्हाई आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी एन एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड हैट्स ऑफ टू दिस बैंक फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी.